this is Faisal here. Welcome you all to Study From Home. Again, let's start with class 6 Social Science Civics portions with ongoing chapter, I can say, because with rural administration, right? I am enjoying this chapter rural livelihoods. So already हमने बात कर ली थी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि जो एक तरीके से विलेज की जो लाइफ है वो किस तरीके से रन होती है और किस तरीके से उस वहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा सप्लाई और प्रोवाइड की जाती है, राइट. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रूरल लाइवलीहुड्स मीन्स कि जो विलेज में रहने वाले जो लोग हैं, राइट, कि उनके लिए ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो किस तरीके से हासिल करते हैं, राइट. सो वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, राइट, सो जो नेसेसिटी आइटम्स, राइट, इज नोन एज देयर लाइवलीहुड्स, राइट. Now, in the first chapter, we looked at the many kinds of diversity in our lives. We also explored how living in different regions has an effect on the work people do, the kinds of plants, trees, crops, or things that become important to them. यानी जो फर्स्ट चैप्टर, यानी ये जैसे कि 6th स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट हुआ, सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपने जाना, वहाँ पे क्या बात थी, राइट, द डाइवर्सिटी यू हैव लर्न, राइट. द डाइवर्सिटी क्या है, दैट कि हर स्टेट में रहने वाले डिफरेंट लोग या फिर हर पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले डिफरेंट लोग जो खाना अलग खा रहे हैं, जो लैंग्वेजेस अलग स्पीक कर रहे हैं, जो कपड़े अलग पहन रहे हैं, जिससे एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें वो जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से एक रेम्बो, राइट, एक रेम्बो कल्चर को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. जैसे रेम्बो को देखना हमें क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. कुछ उसी तरीके से हमारी कंट्री में ये जो तरह के लोग रह रहे हैं जो हमारी कंट्री को क्या बना रहे हैं, एक तरीके से रेम्बो बना रहे हैं, राइट. सो somehow such things that they were using on a different aspect, right, they are very important for them, so the reason why they are using them, right. In this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in villages, right, and here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situations, in the problems that they फेस. यानी कुछ उसी तरीके से विलेज लेवल में लोग अपनी नेसेसिटी आइटम्स को किस तरीके से अर्न करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस एज वेल एज जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मींस इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी है, राइट. सो द रीजन वाई कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारा होता रहता है, मींस बीच में झगड़ा भी होता रहता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेशन वे में देखा जाता है, मींस कि कोई अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के साबित करता है यानी प्रूव करने की ट्राई करता है, वेयर इस सामने वाले को क्या समझता है, छोटा समझता है. एंड सच डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज वेल एज races means the different color faces, right, and also caste along apart from this, right, wealthy or poor, right, etc. So that we are going to discuss in this chapter. So the picture you can see, right, where you can see the different kind of people work or are doing different kind of things, right. So here you can see a masonry work, right, a digging work, right, card puller, right, here, right, a person who hunting, or you can say playing with children, right, and different work, right. You can see here the fish catcher, right. So describe the work that you see people doing in the above lecture. So just now we have discussed, or just now we have talked. Identify the different types of work that are related to farming and those that are not. List this in your table, right? So wherever the crops and plants is being included, right, to collection, right, or go to cultivations, that work you can consider as farming, right. So only one work that I am going to share with, right. Here you can see, right, a farming work is already done, right. Now here somehow, right, this card holder, right, this work we also consider, right, related to farming work. क्यों? क्योंकि जो
फार्मर्स है वो वेजिटेबल्स को ग्रो करेंगे, तभी तो ये जो वेंडर है या फिर कार्ट पुलर है वो सब्जियों को क्या कर सकेगा, बेच सकेगा। अंडरस्टैंड? सो somehow you have to implement your logic, right? Identify and observe the questions very well, right? And then you have to answer. Now, in your notebook, draw some pictures of work that you have seen people doing in rural areas and write few sentences that describe the work. यानी इसके चलते आप क्या कर सकते हो, रूरल एरियाज में जो वर्कर्स है जो आप देखते हो, यानी फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात ये है कि whenever you are talking about village life, right? So कौन-कौन से images आपके माइंड में आते हैं, that drawing you have to draw. Clear? Now, here our chapter is starting with Kalpattu village, right? So here we are going to discuss that the people who are living in Kalpattu village, right, how they earn their livelihood. So Kalpattu is a village that's close to the sea coast in Tamil Nadu. Means के वो हमारी कंट्री के साउथ रीजन में आया हुआ एक विलेज है, राइट, जो किसके नजदीक है, राइट, सी कोस्ट। मींस कि जहां पे तमिलनाडु एरिया है वहां पे ये जो सी कोस्ट है उसके नजदीक कौन सा विलेज आया है, कलपत्तू विलेज आया हुआ है। क्लियर वन? नाउ एंड आल्सो सी कोस्ट मींस एन इंपॉर्टेंट प्लेस फ्रॉम वेयर द ट्रेड बीइंग डन, यानी वो एक ऐसा एरिया होता है कि जहां पे लिटरली बाय वाटर वे, राइट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से जो शिप्स आती है वो वहां पे क्या होती है, अनलोड होती है, लोड होती है और फिर दूसरी जगह पे जाती है, एंड बाय दिस वे, राइट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज बीइंग मेड। क्लियर? राइट? सो दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ पार्ट इज नोन एज sea coast as well as coastal area. Clear? Now, people here do many kinds of work as in other villages. Here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. यानी यूजुअली जब हम गांव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एक चीज जो हमारे माइंड में आती है दैट इज फार्मिंग, राइट? लेकिन ये कलपत्तू विलेज की बात ये है दैट कि अनलाइक डिफरेंट विलेजेस, यानी दूसरे विलेजेस की तरह यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कौन सा वर्क नहीं है, राइट, दैट नॉन फार्म वर्क, यानी यहाँ पे नॉन फार्म वर्क मींस कि फार्मिंग का वर्क होता नहीं है। तो क्या होता है, मेकिंग बास्केट इज अ यूजुअल थिंग, राइट, यूटेंसिल्स यानी यही जो बास्केट जिसमें से बनता है बांबू में से, सो वही बांबू में से वो डिफरेंट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स बनाते हैं, राइट, पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं एज वेल एज ब्लॉक कार्ड्स बनाते हैं। Understand? Now there are people who provide services such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanics and so on. तो यहाँ पे फार्मिंग के अलावा, राइट, या फिर फार्मिंग को एक्सक्लूड करते हुए सिर्फ कुछ प्रोफेशंस की बात की है, राइट, तो जिसमें क्या है, blacksmith means a person who prepare things from the metals, right? Nurses, you already know, right, given facility to the needed persons, right, who are ill or unaware. Teachers, you are familiar with. Washermen, right, washermen means either you can consider them as a clothes washer, right, as well as you can consider them as a car washer, right, or different kind of materials or the things that they have, they are washing. Weavers, like a person who weaves clothes, baskets, different persons would be included here, right? Now there are also some shopkeepers and traders, और इन लोगों के साथ कुछ कौन है, शॉपकीपर भी है, राइट, कि जो छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं अपनी शॉप में बेचते रहते हैं। ट्रेडर्स जो चीज़ों को ह्यूज क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह पे बेचते रहते हैं, राइट, इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार, और वहाँ पे एक मेन स्ट्रीट आई है जहाँ पे क्या है, बाजार है। तो इसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा कुछ विलेजेस जो हमारे यानी रूट सिटी में भी है, राइट, या फिर सपोज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे विलेज से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जहाँ पे फार्मिंग तो होता है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पे कलपत्तू विलेज की बात हो रही है तो फार्मिंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई है वो सारी की सारी वहाँ पे देखने को तो मिलती है, राइट, दैट के गाँव होता है पर्टिकुलर जो जिसे हम
you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a clothes shop, tailor and two fertilizers and seed shop. Fertilizers means कि जहाँ पे लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए जो फर्टिलाइजर जरूरी है, राइट, जिसको हम खातर बोलते हैं, राइट, सो उसकी भी शॉप्स है एज वेल एज सीड शॉप्स यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. There are 4 tea shops which sell tiffin such as idli, dosa and उपमा, right? So वहाँ पे कुछ टी शॉप्स है यानी जहाँ पे खाने पीने की क्या मिलती है, चीजें मिलती है जो लिटरली वो प्रोवाइड कर रहे हैं. Now here you can see that transplanting paddy is a back breaking verb. Transplanting paddy, right? So paddy means rice. Transplant करना means कि वो क्या है, that के पैडीज को ग्रो करने के लिटरली जो वाटर इसके पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट, मोर रिक्वायर्ड ऑफ वाटर टू ग्रो सच पैडी, राइट. सो वो क्या करते हैं, पहले पैडी के छोटे छोटे प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं. अब ग्रो हो जाते हैं यानी वो जो स्प्राउटेड हो जाते हैं, राइट, स्प्राउटेड होने के बाद उनको वहाँ से कहाँ पे ले जाया जाता है, फील्ड में ले जाया जाता है और वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है. सो ये काफी मेहनत वाला काम है. सो द रीजन है इट इज कॉल्ड बैक ब्रेकिंग वर्क यानी कमर तोड़ काम है. इडली वगैरह के स्नैक्स दिए जाते हैं, राइट, लाइक वड़ा, बोंडा एंड मैसोरपा, राइट, सच थिंग्स आर द फूड आइटम्स इन द snacks like वड़ा, बोंडा एंड मैसोरपा इन द इवनिंग यानी इडली डोसा जैसी चीजें सुबह में दी जाती है, whereas वड़ा एंड बोंडा मैसोरपा जैसी चीजें इवनिंग में दी जाती है. सो बाय दिस फूड आइटम्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं वो कैसी है, फेमस है एज वेल एज वहाँ पे खाने लायक चीजें हैं. नाउ नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ blacksmith family whose home serves as their workshop यानी बाजू में ही क्या है, एक ब्लैकस्मिथ बैठा हुआ है, राइट, कि जिसका जो घर है वही उसकी क्या है, दुकान भी है और वहीं पे वो रहते भी है, राइट. नेक्स्ट टू दैट इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप कि जहाँ पे साइकिल क्या दी जाती है, हायर पे दी जाती है एज वेल एज साइकिल की क्या है, शॉप. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को शायद क्वेश्चंस अराइज हो सकता है कि साइकिल को कौन हायर पे लेता है, राइट, कि साइकिल भी तो कोई हायर पे देने वाली चीज़ है. बट समहाउ कुछ विलेजेस अभी भी ऐसे हैं जो इतने पुअर है, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे स्कूटर्स जैसे फैसिलिटी बहुत कम होती है, राइट. तो ऑफन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, तब वो क्या करते हैं, साइकिल को हायर पे लेते हैं और तब वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. इवन आई एम रिमेम्बरिंग दैट in my childhood days, right, where I was studying in 1 to 5, right, where there is a shop nearby school, right, which was given, right, bicycle on a hire on 50 paisa per 15 minutes or 1 rupees for half hour, right, that I have also experienced, right. So it is a quite a but obvious, but nowadays it is completely abolished. You cannot see this, right, but somehow still in some of the villages this process is still going on. Two families earn a living by washing clothes. उसके बाद जो दो families हैं वो clothes को washing करके क्या कर रहे हैं, अपना earnings को हासिल कर रहे हैं. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers. यानी कुछ ऐसे हैं जो construction work पे यानी masonry work पे जा रहे हैं और कुछ lorry driver means truck drivers. And the village is surrounded by low hills. जो village है उसके आजू बाजू छोटी छोटी क्या है, hills है. Paddy is the main crop that is grown in irrigated lands. अब यहाँ पे एक अंडरलाइन करने वाली बात ये है कि ये जो पैडी है वो ग्रो होता है लेकिन कहाँ पे, इरिगेटेड लैंड्स मींस के जहाँ पे लिटरली पानी को अच्छी तरीके से सप्लाई किया जाता है और वहाँ पे पानी अच्छी तरीके से मिलता है. सो द रीजन में वहाँ पे क्या ग्रो होता है, पैडी ग्रो होता है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं यानी वो अर्न करते हैं वो कहाँ से करते हैं, एग्रीकल्चर से करते हैं, राइट. वन थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड बिफोर यानी सारे गांव के कंपेयर में ये गांव ऐसा है कि एग्रीकल्चर तो कॉमन चीज़ है ही लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट दूसरे गांवों से अलग हमें
काम करने के लिए जाते हैं। तो उसी तरीके से ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, रामलिंगम के फील्ड में काम करते हैं, जिसके पास कितनी एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, राइट। So around we can say for the binga, right, 1 acre is equal to 2 binga. So of paddy fields in Kalpattu, even before I was married, I used to work on paddy fields in my parent village. यानी जब कि उसके मैरिज नहीं हुए थे उससे पहले भी वो जब उसके विलेज में रह रही थी तब भी वो किसका काम कर रही थी, पैडी फील्ड में ही काम कर रही थी। मीन्स के राइस ग्रो होते हैं वहीं पे काम कर रहे थे। आई वर्क फ्रॉम 8:30 in the morning to 4:30 in the evening, right? So almost 8 hours का वर्क वो किसमें जाता है, उनका फील्ड में जाता है, right? So 8:30 to 4:30 in the evening and Karuthamma, Ramalingham's wife, supervises us. यानी जो Karuthamma है, right? She was the wife of, or she is the wife of Ramalingam. So Ramalingam कौन है, एक बड़ा लैंड ओनर है, उसके वहाँ पे काम कौन करते हैं, तुलसी काम करते हैं। कितने टाइम तक करते हैं, 8:30 to 4:30, राइट। और जो Karuthamma है वो उनको क्या करते हैं, सुपरवाइज, राइट। So such names could be asked in the filling the blanks. Then who supervise the work of the farmers? Then Karuthamma, right? Who owns the land? Ramalingams, right? Who work in Ramalingams well? Then Tulasi and most of other and also other farmers. Now this is one of few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. यानी ये वो टाइम है, यानी जिस टाइम को वो फील्ड में काम कर रहे हैं तब उनकी टाइम बता रहे हैं कि ये वो टाइम है कि जब हमें क्या मिल रहा है, रेगुलर वर्क मिल रहा है। यानी मोस्ट ऑफन तो उन्हें रेगुलर वर्क मिलता नहीं है, राइट। सो ये वो टाइम है कि जहाँ पे रामलिंगम, जब वो जो पैडी का क्रॉप थोड़ा बड़ा हो जाता है तब रामलिंगम को काम करने के लिए बुलाता है। उसके पास जो अनवांटेड ग्रास जो ग्रो हो जाती है उनको वो क्या करते हैं, वीड कर लेते हैं, मिक्स निकाल के फेंक देते हैं। और फिर जहाँ तक हार्वेस्टिंग होती है तब तक वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी फील्ड में काम पे रहते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। फ्रॉम दिस पैराग्राफ वी विल स्टार्ट इन new class or a new video, right? So till then, take care of yourself, your